Hello and welcome all of you. Today we will learn another lesson of Unit 1, that is lesson number 2, Wonderful Waste. So, do you know children that we can get many useful items using waste material. So, in this lesson we will see how a waste material turned into a wonderful item. So, are you all ready? Let's start the lesson. So, let's start the lesson. Wonderful waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. So, in this story we will see how a waste material turned into a wonderful waste. Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. मीन्स यहाँ पे ट्रैवेनकोर एक जगह है, वहाँ के राजा ने एक बड़ी सी दावत अपने साम्राज्य में रखी थी. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर मीन्स दोपहर के समय में, इन द आफ्टरनून और डिनर के पहले महाराजा अपने महल के किचन में कौन कौन सी डिशें बन रही है, कौन कौन सी खाने की डिश बन रही है, वो चेक करने के लिए किचन में जाते हैं कि फीस्ट के लिए क्या क्या चीजें बन रही है. फीस्ट मीन्स a traditional feast, hearty meal for many guests served on a special occasion. means कोई हमने बड़े से प्रोग्राम रखा हो, वहाँ पे ओकेजन के लिए जो डिशेस रखी हो उसे फीस्ट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. Here he means who? Maharaja asked the cook that what are you going to do with those vegetable scraps, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, they are waste. We will throw them away. Here in this paragraph we will see that Maharaja asked cook, महाराजा ने कुक से पूछा कि सपोज दिस इज अ वेजिटेबल स्क्रैप्स बास्केट. तो महाराजा ने बास्केट की तरफ ऐसे पॉइंट आउट करके पूछा कुक से कि तुम इस बास्केट में जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, वेजिटेबल स्क्रैप्स मींस वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, बिट्स, छिलके, उसका तुम क्या करने वाले हो. तो कुक ने रिप्लाई किया कि मैं इस वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंक दूंगा, इसे मैं कुछ रीयूज नहीं करने वाला हूँ. You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. Means महाराजा ने बोला कि तुम ये बिट्स मतलब वेजिटेबल्स के छिलके फेंक नहीं सकते. कोई ऐसा आइडिया सोचो कि जिससे तुम इसे वापस रीयूज कर सकते हो. महाराजा ने स्टर्नली कमांड किया. कमांड मीन्स ऑर्डर देना. स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, थोड़ा गुस्से से स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया और वहां से चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly an idea flashed across his mind. Means कुक है वो वेजिटेबल्स बिट्स को थोड़ी देर के लिए घूरता रहा और सोचने लगा कि मैं क्या करूँ इसका. थोड़ी देर के लिए उसे घूरता रहा और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हुआ. फ्लैश मीन्स स्ट्राइक होना. अचानक एक आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Means here he means who? Cook. Here he took all the vegetable bits means cook ने सारे vegetables के छिलके लिए उन्हें धोया अच्छे से और अच्छे से clean किया. Then he cut them into long strips. Means vegetables के basket में suppose this is a basket, these are the bits. इस सभी bits को उसने long strips में कट किया. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this
paste and some salt to the cooking vegetables. So first what he do? He took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot. उसने वो सभी स्ट्रिप्स को एक बड़े से पॉट में उसमें डाला and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. Green chilies हरी मिर्च और कोकोनट नारियल और गार्लिक मीन्स लहसुन, वो तीनों को उसने एक पेस्ट में, एक चटनी के जैसे उसने उसमें रेडी किया. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. कहाँ उसने ऐड किया? वो सभी चीजें इसमें पॉट में ऐड की और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला. Understood? Again I am repeating. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. He means cook. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste in this pot and add some salt. थोड़ा सा नमक उस पॉट में कुकिंग वेजिटेबल्स में उसने ऐड किया. A tempting smell started coming from the pot. पॉट में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू, एक्साइटिंग खुशबू. टेम्पटिंग मीन्स एक्साइटिंग, हमें पसंद हो. अट्रैक्टिव स्मेल, हाईली अट्रैक्टिव स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. नाउ he whipped some curd means dahi, and added it to curry. उसने थोड़ा सा दही भी इस पॉट में, करी, इसे उसने नाम दिया है करी, ऐड किया थोड़ा सा दही. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद उसने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, स्पूनफुल मीन्स चम्मच, पूरा 1-2 चम्मच भर के उसने कोकोनट ऑयल, कोकोनट का तेल उस पे पोर किया. पोर मीन्स डालना ऊपर से, और उस डिश को उसने डेकोरेट किया. सपोज दिस इज अ डिश और इसके ऊपर उसने थोड़ा सा डाला कोकोनट ऑयल और इस डिश को डेकोरेट किया करी लीव से. करी लीव्स मीन्स कड़ी पत्ता. क्लियर? Decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. Means, look what a surprise! The new dish was ready. Then the cook served this new dish to the guest that evening. Means, ये जो कुक था उसने ये डिश वहाँ के सभी गेस्ट जो फीस्ट में आए थे उसे इवनिंग में सर्व की. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. Means U-V-L. Means जब कुक ने ये डिश सभी गेस्ट को सर्व की, दिस इज करी लीव्स डेकोरेटेड, तो सभी लोग ये डिश का नाम जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्सुक थे, ईगर थे. तो कुक ने सोचा, सभी लोग कुक से पूछने लगे कि ये डिश का नाम क्या है. तो कुक सोचता रहा कि मैं इस डिश को क्या नाम दूं. अचानक उसके दिमाग में एक नेम आया डिश को देने के लिए. इट इज Avial, and it can also pronounced as U-V-L. Clear? So, name of this new dish was given Avial. By whom? By cook. Avial became famous all over Kerala.
is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. Means एवियल है वो पूरे केरला में फेमस हो गया और अभी भी वो उतना ही फेमस है ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में। मीन्स केरला में जब बहुत ही बड़े उस पे कोई प्रोग्राम हो, खाने की फीस्ट हो, उसमें ये एवियल बहुत ही फेमस हो गया है। और ये इमेजिन, ये सोचने जैसी बात है कि ये सिर्फ एक छोटे से बास्केट वेस्ट में से इसे रीयूज करके इतनी अच्छी वंडरफुल डिश बनाई गई है। Now further we will discuss some of the meanings from this lesson. First is in a fix. This sentence we learned in lesson that cook was in a fix. In a fix means a situation hard to escape from. Means ऐसी situation जिससे आप भाग नहीं सकते। जब राजा ने कुक को बोला था कि ये वेजिटेबल बीट्स को तुम्हें फेंकना नहीं है, इसे कोई आइडिया सोचो, कोई तरीका सोचो कि इसे हम रीयूज कर सके, तो कुक वॉज इन अ फिक्स मीन्स ऐसी सिचुएशन जिससे वो भाग नहीं सकता। सेकेंड इज फ्लैश अक्रॉस द माइंड, मतलब कुक के माइंड में अचानक एक आइडिया फ्लैश हुआ था, अचानक, सडनली। सो इट्स मीनिंग इज सडनली थिंक ऑफ, मीन्स अचानक कुछ सोचना या फिर कुछ याद आना। Lo and behold means look, what a surprise. Lo and behold means देखो क्या सरप्राइज है, look what a surprise. Fourth, traditional feast means I already mentioned you in this lesson that it means hearty meal for many guests served on a special occasion. मीन्स घर में बड़ा सा प्रोग्राम हो, बड़ी सी दावत हो, उससे दिल से जो सर्व किया जाता हो, that is known as traditional feast. Hearty meal for many guests served on a special occasion. Now we will discuss some of the workbook exercise and some we will do on board. We will first discuss first exercise A. Answer the following question. First question is, what were the preparations in the palace for? Means palace means राजा जहाँ पे रहता हो, राज्य में किस चीज की preparations चल रही थी? तो answer will be the preparations were made for a grand dinner in the palace of the Maharaja of Travancore. We have to mention the name of that palace. So the name of the palace is, the preparation were made for a grand dinner in the palace of the Maharaja of Travancore. Second question is, why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? Means महाराजा दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम में किचन में क्यों गए थे? I have told you कि वो वहाँ पे चेक करने के लिए गए थे, सर्वे करने के लिए गए थे कि कौन कौन सी डिशें उनके रात का जो डिनर फीस्ट है उसमें कौन कौन सी डिशें बन रही है। सो द आंसर विल बी द महाराजा वेंट इनटू द किचन, गो विल टर्न इनटू द वेंट इनटू द किचन टू एग्जामिन द डिशेस दैट हैड बीन prepared for the grand dinner. Means वो चेक करने के लिए गए थे कि ग्रैंड डिनर के लिए कौन कौन सी डिशें बन रही है। थर्ड क्वेश्चन इज, what had the cook planned to do with the vegetable scraps? सबसे पहले उस कुक ने क्या किया था, प्लान क्या किया था जब राजा ने पूछा था कि ये वेजिटेबल बास्केट में जो स्क्रैप्स है वेजिटेबल्स की, उससे तुम क्या करने वाले हो? तो कुक ने क्या प्लान किया था? कुक ने बोला कि मैं वो बास्केट के वेजिटेबल बिट्स को फेंक दूंगा। सो द आंसर विल बी, एवियल बनाने के बारे में तो उसने बाद में सोचा जब राजा ने उसे ऑर्डर किया, लेकिन उससे पहले कुक का प्लानिंग क्या था कि मैं इस वेजिटेबल बिट्स को फेंक दूंगा। सो द आंसर विल बी, द कुक हैड प्लान्ड to throw the vegetable scraps. Now fourth exercise is, ingredients are the things that are used to make a dish. Means कोई डिश बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, that is known as ingredients. Suppose पिज्जा बनाना है तो पिज्जा का बेस लेयर
cheese, tomato. These are known as ingredients. Circle the ingredients of avial in the box below. So यहाँ पे जो चीजें हैं उसमें avial बनाने के लिए कौन कौन से ingredients हमें काम आते हैं, हम उसे सर्कल करेंगे. First is chilies. Chilies, groundnut, wood, vegetable. Chilies means हरी मिर्च. Groundnut means सींग. Wood, लकड़ी. Vegetable scraps means vegetables के छिलके. Coconut, नारियल. Curd, दही. Roasted peanuts. Pot, garlic means लहसुन. Broken bangles, basket and curry leaves. Now we will circle all these ingredients which are coming for making a dish avial. So chilies, it will come to make ingredients as a avial? Yes. So we will circle the word chilies. Groundnut? No. Wood? No. Vegetable scraps? Yes. With the vegetable scraps only the dish will be made. Coconut? Yes. कोकोनट चिलीज की पेस्ट बना के हम उस पॉट में ऐड किया था कुक ने. कर्ड, दही. यस. रोस्टेड पीनट्स? नो. पॉट, इज इट नेसेसरी? यस. आप बनाओगे किसमें? थाली में तो बना नहीं सकते. देन गार्लिक. ग्रीन चिलीज, कोकोनट और गार्लिक की पेस्ट बना के इस पॉट में कुक ने ऐड किया था. ब्रोकन बैंगल्स मीन्स टूटी हुई चूड़ियां, उसका कोई काम नहीं है. बास्केट? नो. बास्केट में तो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स रखे थे. इट डजंट मैटर, आप कहीं पे भी उसको रख सकते हो. यू कैन यूज न्यूज़पेपर आल्सो. करी लीव्स मीन्स कड़ी पत्ता. लास्ट में कुक ने उसे डेकोरेट करने के लिए करी लीव्स लिया था. यस. सो दिस ऑल आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग डिश avial. Now we will do some true and false. First is the king had ordered a grand dinner in his palace. Is it correct or wrong? King, राजा ने अपने पैलेस में, राज्य में एक बड़ी सी दावत ऑर्गेनाइज की. Yes, it is true. Second one, no one had heard of or tasted avial before. पहले जब वो लोगों ने इसका नाम पूछा तो उसने बताया avial. और ये डिश पहले कभी किसी ने देखी भी नहीं थी और चखी भी नहीं थी. इज इट करेक्ट? या सबको ये डिश के बारे में पहले से पता था? नो, सबको नहीं पता था. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू कि हाँ ये डिश के बारे में कभी भी पहले किसी ने देखा भी नहीं था और सोचा भी नहीं था. थर्ड, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. कुक ने वो वेजिटेबल्स के छिलके का जो बास्केट था उससे एक अलग डिश बनाने के बारे में सोचा. इज इट करेक्ट? यस. पहले उसने उसे फेंक देना था, लेकिन जब राजा ने बोला कि आप इसको फेंक नहीं सकते, इसे कोई रीयूज करने का तरीका सोचो, तो कुक ने फिर प्लान किया कि मैं इस वेजिटेबल बिट्स में से अलग डिश बनाऊंगा. सो थर्ड वन इज ट्रू. फोर्थ, no one was eager to know the name of the new dish. means किसी को भी नई डिश का नाम जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी एक्साइट नहीं था. इट इज फॉल्स. सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्सुक थे और सबको ये जल्दी थी कि ये डिश का नाम जल्दी से कुक बता दे. सो फोर्थ आंसर इज फॉल्स. फिफ्थ वन, avial became famous all over Delhi. No, it is famous in Kerala. So this will be false. Clear? Now we will do another exercise. A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. So these are the sentences. ये अलग-अलग ऑर्डर में है. हमें इसे करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट नंबर देना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. रेडी? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग्स. ग्राइंड some coconut, green chilies and garlic means coconut, green chilies
और गार्लिक को पेस्ट रेडी करो। सेकेंड, कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। वेजिटेबल्स के छिलके को बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स में कट करो। वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। ये वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं उसे पहले धो के क्लीन करो। डेकोरेट विथ करी लीव्स, और करी लीव्स में उसे डेकोरेट करो। विप सम कर्ड, थोड़ा सा दही उसके अंदर मिक्स करो। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। एवियल इज रेडी। सो एवियल इज रेडी तो लास्ट में ही आएगा। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप ये पहले आएगा? नो। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले तो वेजिटेबल्स के बास्केट का जो बिट्स है उसे हमें पहले क्लीन करना पड़ेगा। सो दिस विल बी नंबर 1. वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सेकेंड विल बी धोया, उसके बाद उसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करना पड़ेगा। सो सेकेंड विल बी कट द वेजिटेबल्स स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। उसके बाद उसे क्या करना पड़ेगा? पेस्ट बनानी पड़ेगी। किसकी? कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक की। सो दिस विल बी नंबर 3. क्लियर? डेकोरेट विथ करी लीव्स नंबर 4 नहीं होगा क्योंकि उसमें अभी दही ऐड करना बाकी है। सो उसके पहले fourth one is whip some curd and mix it in. Number 5th will be उसके बाद pour some coconut oil on top. ये सभी चीजें डालने के बाद सबसे ऊपर टॉप पे we will pour some coconut oil on top. और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे? वो डिश को कड़ी पत्ते से डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट मीन्स सजाएंगे। डेकोरेट विथ करी लीव्स। सो दिस विल बी नंबर 6. And last and final, what we get? Dish will be avial. So we get avial is ready. So these are the correct order for making avial. Now we will discuss some of the MCQs. First is the Maharaja was of option A Travancore, option B Thiruvananthapuram, option C Karnataka, option D Delhi. What will be the answer? Yes, option A Travancore. Second, what were the waste? Waste किसका था? फ्रूट का, नट्स का, वेजिटेबल्स का या ये सभी चीजों का? ऑप्शन ए फ्रूट स्क्रैप्स, ऑप्शन बी वेजिटेबल स्क्रैप्स, ऑप्शन सी नट स्क्रैप्स और ऑल ऑफ दिस. सो वो वेस्ट किसका था? वेजिटेबल स्क्रैप्स का. थर्ड, हु कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स? वेजिटेबल के जो छिलके थे उसे लॉन्ग स्ट्रिप्स में किसने कट किया? ऑप्शन ए द महाराजा, ऑप्शन बी द सर्वेंट, ऑप्शन सी द कुक एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. सो इसे किसने कट किया था? यस, कुक ने. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी द कुक. फोर्थ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू डिश? डिश का कुक ने क्या नाम दिया था? ऑप्शन ए एवियल, ऑप्शन बी बीवियल, ऑप्शन सी डीवियल एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस की कोई भी नहीं. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए एवियल. Avial was the name given to the dish by cook. Now exercise E, fill in the blanks. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his dash. What there came? Palace. महाराजा ने अपने पैलेस में एक बड़ा सी दावत रखने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था. सेकेंड, द डैश was in a fix and kept staring at the dash scraps. कौन फिक्स सिचुएशन में था? कुक. और किसको देखते रहा? वेजिटेबल के स्क्रैप्स को. सो द आंसर विल बी द कुक was in a fix and kept staring at the vegetable scraps. Third, the cook dashed this paste and some salt to the cooking dash.
So answer will be the cook added this paste. Which paste? Coconut, green chilies and garlic paste and some salt. ये पेस्ट ऐड करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक कुकिंग वेजिटेबल्स में ऐड किया. So the answer will be the cook added this paste and some salt to the cooking vegetables. Fourth, a dash smell started coming from the pot. Means tempting smell. Answer will be tempting smell. Tempting means highly attractive smell. Last blank. The name of the new dish was avial. Dash will be avial. So here we come to end of this video. Hope you all learned it properly and enjoyed fully. So take care children and see you in the next video.